Hello everyone, welcome to Software Engineering 1. Now today we are going to learn about data flow diagram, that is topic of unit number 4, requirement analysis. Now this is the last topic in unit number 4, that is data flow diagram, data dictionary and process specification. Now here I am going to explain you data flow diagram. It means DFD. Now what is DFD? Now, DFD is a graphical way of defining systems input, process and output. It means there is some process, so हमें input define करना है and उसका output define करना है. Now, this DFD represent flow of data through the system. It represents the system's flow. Now, DFD is a graphical representation of the flow of data through an information system. Now, data flow diagram illustrate how the data processed by a system like this data processed by this system in terms of input and terms of output. Okay. So, data flow diagram is used to provide a clear representation of any system. Okay. Now, what is the purpose of DFD? Now, first purpose is DFD is a graphical tool which can be used by the analyst, system analyst to clarify his understanding of the system to user. Users ने जितनी भी requirement बोली है उसको convert करना है system design में. So system design में हमें पहले क्या बनाना है? Data flow diagram. Flow of all the data in system. And DFD can be easily converted into a structure chart which can be used in design phase. So अगर हम data flow diagram draw करेंगे, system का data input क्या है, output क्या है वो define करेंगे. So from that we can easily draw structure chart, right? And which can be used in design phase. Okay. Now, next one is I'm going to explain you the symbol that is used in DFD. Now, first symbol is about process. Now, process is indicated by circle. Now, it indicates how the flow of data is transformed. For example, we can say that update order details, login verification होता है, ठीक है, हमारा स्टूडेंट का क्रेडिट वेरिफिकेशन होता है एंड सो ऑन. ऑल द we can say all are process. Then second one is entity, or we can say external entity that can be represented by box. ठीक है, so we can say a source of destination of data which is external to the system. This one is external to the system. For example, librarian, student, employee, supplier and so on. Then third one is data flow. It means it represents flow of data that indicate by arrow. Okay? So we can say it may be in the form of a document, letter or information, detail, etc. And the last one and the fourth one is data store. मतलब database जहाँ पे data store होता है. So it can be represented by this two line or in this way. Right? So any data stored in this data store with no reference to the physical method of storing. For example, student detail, customer master file, order detail file and so on. Okay. Now I am going to explain you some guideline to construct the DFD. Now, first guideline is data cannot flow between two entities, right? Like student to librarian or librarian to student. Directly flow नहीं होता है data. Always entities to process and then data store or process to another process. ठीक है, data का flow ऐसा होता है. So data cannot flow between two entities. Then
सेकंड वन इज डेटा कैन नॉट फ्लो बिटवीन टू डेटा स्टोर. ठीक है, दो लेफ्ट हैंड साइड डेटा स्टोर एंड राइट हैंड साइड डेटा स्टोर और हमें डायरेक्टली एंटर डिटेल नहीं कर सकते. ठीक है, सो डेटा कैन नॉट फ्लो बिटवीन डेटा स्टोर. इट कैन बी सोर्स फ्रॉम एंटिटी, then process, and then data store. Okay, then third one is data cannot flow directly from an entity to data store. ठीक है, like entity to data store directly possible नहीं है, entity to process and then data store. ठीक है, that could be possible. Then fourth one is a process must have at least one input data flow and one output data flow. Like अगर process है तो at least one input and one output चाहिए. A data store must have at least one input data flow and one output data flow. Like हमने table define किया है तो अगर उसमें input data flow होगा तो at least one आउटपुट डेटा फ्लो पॉसिबल है. ठीक है, देन सिक्स्थ वन इज टू डेटा फ्लो कैन नॉट क्रॉस ईच अदर. लाइक डेटा फ्लो को हम ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज ऑल द प्रोसेस इन द सिस्टम मस्ट बी लिंक टू मिनिमम वन डेटा स्टोर और एनी प्रोसेस. लाइक अगर हमने एक प्रोसेस ड्रॉ की है तो या तो हम दूसरी प्रोसेस के साथ लिंक कर सकते हैं या तो प्रोसेस मस्ट लिंक विथ अ डेटा स्टोर. Okay, so these are the guidelines to construct DFD. Now I am going to explain the steps to draw DFD. In that, first step is context diagram. In that, first level is, we can say, zero level, or we can say context diagram. Okay, now zero level DFD or context diagram. In that, entire system is represented by one process. For example, I'm going to take one system, that is library management system. Now, हम library management system में क्या list out करते हैं? Like process कौन सी होगी, entities कौन सी होगी. Like let me talk about entity. For example, librarian one entity होगी और student one entity होगी. और यस, बुक कैन बी अनदर एंटिटी, बट यहाँ पे हम सिर्फ रियल वर्ल्ड एंटिटी है वही डिफाइन करेंगे. ठीक है, एक्सटर्नल एंटिटी जो यूजर्स है वही डिफाइन करेंगे. ठीक है, सो इन context डायग्राम द एंटायर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन प्रोसेस and which gives the system's overview, and it is called as context diagram, right? Like, as I said, entire system is represented by one process. For example, we all know that process is represented by circle. तो हमने एक ही सर्कल ड्रॉ किया, उसमें हमें पूरा सिस्टम का नाम लिखना है. ठीक है, पूरा सिस्टम लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, नाउ अब क्या होगा कि यहाँ पे हमें एंटिटीज डिफाइन करनी है. नाउ कौन कौन सी एंटिटीज होगी? लाइक फर्स्ट, एज आई सेड, हमें एंटिटी स्क्वायर में लिखनी है. सो लाइब्रेरियन is a one entity and we can say second entity is student. अगर हम entity name लगते हैं तो entity name must start with capital letter. Okay, now librarian library management system में कौन सी information enter करेगा? That is about book detail, student detail, ठीक है, authentication detail, और system will provide him status about book, status about student also. So student detail भी provide कर सकता है. ठीक है, now student system में क्या enter करेगा? About book. So he enter book detail, like उसको कौन सी book चाहिए. ठीक है, and he will get status about book, right? Okay, clear? That is the for zero level DFD, or we can say context diagram. Okay, clear? Now a context diagram contains single process
and we usually being drawing DFD with context diagram, a simple representation of the whole system. Clear? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कई बार एग्जाम में आता है 14 मार्क में, ये 14 मार्क में, ये 0 लेवल है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फर्स्ट लेवल डायग्राम. ठीक है, फर्स्ट लेवल डायग्राम ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, फर्स्ट लेवल DFD. ओके, नाउ फर्स्ट लेवल DFD में हमें सिस्टम की जितनी भी प्रोसेस है वो डिफाइन करनी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम प्रोसेस अभी लिस्ट आउट करते हैं. ठीक है, हमने 0th लेवल पे जो है सारी एंटिटी डिफाइन कर दी है, और फर्स्ट लेवल पे जितनी भी प्रोसेस यूज होने वाली है, जितने भी डेटा स्टोर यूज होने वाले हैं, सब हम डिफाइन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेवल पे हम प्रोसेस डिफाइन करेंगे, तो फर्स्ट प्रोसेस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगी? तो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन अबाउट स्टूडेंट. ठीक है, फिर लाइब्रेरियन और स्टूडेंट क्या करेंगे? लॉग इन करेंगे सिस्टम में, एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? लॉगिन होने के बाद मतलब ऑथेंटिकेशन हो गया अबाउट स्टूडेंट, अबाउट लाइब्रेरी. स्टूडेंट पर्टिकुलर बुक के लिए रिक्वेस्ट करेगा, इट मींस इश्यू करेगा, एंड लेटर ऑन स्टूडेंट विल रिटर्न बुक टू लाइब्रेरियन. ओके, सो हमें इतनी प्रोसेस डिफाइन की है, बाद में रिपोर्ट्स भी आएंगे, लेकिन इतने डिटेल में हमें नहीं जाना है. हमें बेसिक जो जितनी प्रोसेस है वो मेंशन करनी है. तो पहले रजिस्ट्रेशन, फिर ऑथेंटिकेशन, फिर बुक इश्यू एंड बुक रिटर्न. ठीक है, तो 4 प्रोसेस को हम डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन. तो अगर हम रजिस्ट्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट लेवल में, तो हमें नंबरिंग करनी है. लाइक यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस है तो 1.0, सेकंड प्रोसेस है तो 2.0. अब नेम लिखना है, नेम क्या आएगा? रजिस्ट्रेशन. ठीक है, नाउ रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? लाइब्रेरियन. ठीक है, और स्टूडेंट भी कर सकता है. फिर स्टूडेंट वेरीफाई होगा रजिस्ट्रेशन में. ठीक है, और उसको यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलेंगे. तो लाइब्रेरियन क्या इंसर्ट करेगा रजिस्ट्रेशन में? लाइक यूजर डिटेल. ठीक है, दैट वुड बी स्टोर इन अ टेबल, लाइक वी कैन से यूजर मास्टर. ओके, तो फिर से क्या स्टोर होगा उसमें? एरो पे, हर एक एरो पे हमें डिटेल लिखनी है कि क्या प्रोसीजर है. ठीक है, यूजर मास्टर में से हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि पर्टिकुलर डिटेल स्टोर हुई है कि नहीं सिस्टम में से, और लाइब्रेरियन विल गेट स्टेटस, स्टेटस अबाउट यूजर्स. ठीक है, नाउ स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट भी अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा. तो हम लिख रहे हैं स्टूडेंट डिटेल, एंड ही विल आल्सो गेट स्टेटस. ठीक है, सेम यहाँ पे यूजर डिटेल एंड स्टेटस हम लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ आफ्टर रजिस्ट्रेशन कौन सी प्रोसेस होगी? प्रोसेस टू प्रोसेस भी एरो ले जा सकते हैं. आफ्टर रजिस्ट्रेशन 2.0 जो है वो ऑथेंटिकेशन होगा. ठीक है, ऑथेंटिकेशन होगा तो या तो स्टूडेंट लॉग इन करेगा बाय यूजर डिटेल, यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करेगा, एंड ही विल गेट स्टेटस. ठीक है, फिर ये वेरिफिकेशन कहाँ होगा? यूजर मास्टर में ही होगा. ठीक है, तो सारी यूजर डिटेल यहाँ पे ही वेरिफिकेशन होगी, एंड यूजर मास्टर से भी उसको क्या मिलेगा? प्रोसेस में स्टेटस ही मिलेगा. क्लियर? सेम ऐसी ही प्रोसेस और कौन करेगा? लाइब्रेरियन भी कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम एरो जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते, तो ये लाइब्रेरियन को मैं यहाँ से भी कनेक्ट कर सकती हूँ ऑथेंटिकेशन में, लाइक यूजर नेम, पासवर्ड. ठीक है, एंड इसको क्या मिलेगा? पूरी डिटेल मिलेगी अबाउट स्टेटस. ठीक है, यूजर नेम, पासवर्ड एंड स्टेटस. देन लॉगिन हो जाने के बाद स्टूडेंट क्या करेगा? 3.0
बुक इश्यू करेगा, ठीक है? बुक इश्यू के लिए फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने बुक इश्यू के लिए रिक्वेस्ट डाली तो वो क्या एंटर करेगा? बुक डिटेल उसके साथ यूजर डिटेल भी ऑटोमेटिकली जाएगी, ठीक है? सो वो यहाँ पे जाएगा बुक मास्टर में, ठीक है? वेरीफाई होने के लिए और स्टूडेंट को स्टेटस मिलेगा कि बुक अवेलेबल है या नहीं, ठीक है? फिर बुक अवेलेबल है तो बुक के लिए रिक्वेस्ट करेगा और लाइब्रेरियन को बुक पर्टिकुलर बुक डिटेल और स्टूडेंट डिटेल एंटर करेगा वो, ठीक है? स्टूडेंट डिटेल भी एंटर करेगा कि पर्टिकुलर स्टूडेंट के पास कितनी बुक है, वो चेक करेगा, उसके लिए बुक इश्यू हो सकती है कि नहीं, ठीक है? तो वो स्टेटस भी उसको जानने को मिलेगा। एंड देन फोर्थ वन इज कौन सी होगी? 4.0 बुक रिटर्न करेगा, ठीक है? बुक रिटर्न करने के लिए लाइब्रेरी सिर्फ एंटर करेगा पर्टिकुलर बुक जो स्टूडेंट ने बुक इश्यू करवाई है, वो बुक डिटेल और यूजर डिटेल एंटर करेगा, ठीक है? अब रिटर्न जो है वो लाइब्रेरियन ही करेगा क्योंकि स्टूडेंट जो है वो लाइब्रेरियन को बुक रिटर्न करेगा और वो बुक मास्टर में से ही वेरीफाई होगा, ठीक है? बुक डिटेल एंड देन स्टेटस, ठीक है? एंड लाइब्रेरियन विल गेट द स्टेटस। क्लियर? ये रहा हमारा फर्स्ट लेवल डीएफडी ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? नाउ अब जब हम सेकंड लेवल डीएफडी की बात करते हैं, ठीक है? तो सेकंड लेवल डीएफडी जनरली one diagram that is created for every major process on first diagram like registration को डिटेल में एलोबरेट करेंगे, ऑथेंटिकेशन को डिटेल में एलोबरेट करेंगे, बुक इश्यू बुक रिटर्न को भी हम कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर? ना फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम रजिस्ट्रेशन में कोई प्रोसेस नहीं है लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को स्टूडेंट और लाइब्रेरियन व्यू करेगा, फिल करेगा एंड सबमिट करेगा, ठीक है? ऑथेंटिकेशन में लॉगिन और स्टूडेंट को डिटेल मिलेगी पर ज्यादा मेजर प्रोसेस कौन सी है? बुक इश्यू है और बुक रिटर्न है, ठीक है? तो बुक इश्यू को हम कैसे सेकंड लेवल पे क्लियर करेंगे यहाँ पे लाइक सेकंड लेवल डीएफडी, ठीक है? नाउ हम बुक इश्यू की बात करते हैं तो बुक इश्यू की जो प्रोसेस की नंबरिंग थी वो कौन सी थी? 3.0 तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3.1, ठीक है? सो थर्ड प्रोसेस का हम डिटेलिंग कर रहे तो 3.1। नाउ बुक इश्यू करने से पहले क्या होगा? बुक जो है वो सर्च होगी, ठीक है? दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस, ओके? लेटर ऑन सेकंड प्रोसेस क्या है? बुक अगर सर्च हो गई, हम बाकी की एंटिटी लिखते हैं लेकिन पहले प्रोसेस डिसाइड कर देते हैं। लाइक स्टूडेंट जो है पर्टिकुलर बुक के लिए सर्च करेगा, बुक मास्टर में से अगर बुक अवेलेबल हो गई तो वो क्या करेगा? 3.2 पर्टिकुलर बुक के लिए वो रिक्वेस्ट करेगा तो रिक्वेस्ट बुक फॉर इश्यू, ठीक है? एंड देन थर्ड प्रोसेस क्या होगी उसमें कि बुक जो है वो इश्यू होगी, ठीक है? बुक क्या होगी? इश्यू होगी। नाउ फॉर एग्जांपल मैंने कहा जैसे कि स्टूडेंट जो है वो पर्टिकुलर बुक के लिए सर्च करेगा, ठीक है? तो वो बुक डिटेल एंटर करेगा, फिर वही बुक डिटेल कौन से टेबल में जाएगी? बुक जहां पे बुक की डिटेल स्टोर होगी वहां पे फॉर एग्जांपल स्टोर होगी बुक मास्टर में, ठीक है? फिर उसको स्टेटस मिलेगा कि बुक अवेलेबल है या नहीं, सो स्टेटस अबाउट बुक, ठीक है? वैसे स्टूडेंट को यहाँ पे स्टेटस अबाउट बुक, ठीक है? फिर वो क्या करेगा? पर्टिकुलर बुक के लिए रिक्वेस्ट करेगा, सो ही एंटर रिक्वेस्ट डिटेल कितने दिनों के चाहिए बुक, कौन सी बुक चाहिए, ठीक है? फिर से और फॉर एग्जांपल उसका नया टेबल बनेगा कि इश्यू मास्टर
टेबल नेम शुड बी इशू मास्टर, ठीक है, बुक को इश्यू करने के लिए। तो उसमें रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, यहाँ पे फिर से स्टेटस मिलेगा कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई कि नहीं, ठीक है। फिर अगर लाइब्रेरियन जो है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे रिक्वेस्ट देखेगा तो उसको पता चलेगा कि रिक्वेस्ट डिटेल पर्टिकुलर यूजर की डिटेल वो व्यू करेगा, ठीक है, और उसको रिस्पॉन्स देगा और स्टूडेंट को वो रिस्पॉन्ड मिल जाएगा कि लाइब्रेरियन ने ऐसा बोला है, बुक अवेलेबल है नहीं, इश्यू होगी नहीं, ठीक है। फिर लाइब्रेरियन क्या करेगा, बुक एंड बुक डिटेल एंड यूजर डिटेल एंटर करके बुक को इश्यू करेगा एंड ही विल गेट स्टेटस। नाउ बुक करेगा तो यहाँ पे पहले तो इश्यू मास्टर में बुक डिटेल मिलेगी, ठीक है, कहाँ से मिलेगी, बुक मास्टर में से, ठीक है, तो वो भी प्रोसेस के साथ लिंक होगा एंड यूजर मास्टर जो टेबल है वो भी प्रोसेस के साथ लिंक होगा कि कौन से यूजर ने बुक ली है, ठीक है, एंड दोनों को स्टेटस मिलेगा, यूजर ने कितनी बुक ली है उसका स्टेटस भी लाइब्रेरियन को मिले, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेकंड लेवल डीएफडी को एलोबरेट किया है। Clear? Hope you understand this. Second level DFD. Clear? So generally these level diagram create for every major process on the level 1 and it shows all the internal process that comprises a single process on the level 1, right? It shows how information moves from and to each of these process. Clear? Hope you understand this. Now, if you have any query regarding this, you can tell me. 14 marks का ये question आता है DFD, like online shopping, payroll management system, then school management system, ठीक है, बहुत सारे systems जो है एग्जाम में आई है, सबका डायग्राम मैं ड्रॉ करके आपको दूंगी, बट इतने systems जो है वो आपको कंफर्म करने हैं क्योंकि वो 14 मार्क का आता है DFD. Clear? Hope you understand this. Okay. Thank you.